Good morning, class. Today I'm going to explain the mole concept, topic 1.31 of chapter 1st. In the previous article, I've explained about the calculation of relative atomic masses of elements by using a reference element such as hydrogen, which was further replaced by oxygen, and nowadays we are using carbon 12 isotope for calculation of relative atomic masses of the element. However, the problem of calculation of absolute mass of the atom was still a problem, or this calculation of this absolute mass, absolute meaning means complete, total, or the perfect mass of the respective atom, was still unsolved until it became possible to count the number of atoms or molecules in definite amount of substance. जब तक बेटा हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम कैसे एटम्स के नंबर को काउंट करें, कैसे मॉलिक्यूल्स के नंबर को काउंट करें, तब तक हमारे लिए एब्सोल्यूट मास को फाइंड आउट करना, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम अनसॉल्व थी, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाए थे. बट इट वाज फाउंड दैट 1 gram of an atom of any element contains the same number of atoms, and if we are going to take 1 gram of a molecule, then this 1 gram of molecule of any substance contains the same number of molecules. Now it is somewhat possible for us to count the number of atoms or the number of molecules in definite substance. Suppose we have 1 gram of an atom of any element, it means it consists of same number of atoms, and if we have 1 gram of a molecule of a substance, it will also contain the same number of molecules. Now the number, यहाँ पर हम एक वर्ड यूज़ करें नंबर, सेम नंबर ऑफ एटम, सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स. व्हाट डज दिस नंबर? So this number was determined experimentally and found to be equal to 6.022137 raised to 10 raised to power 23, and this number is corrected up to 7 significant figures. However, the value of this number was modified and becomes equal to 6.022 10 raised to power 23. This number is named as Avogadro's number. This number is named as Avogadro's number, also called as Avogadro's constant, also named as Avogadro's constant, and is usually represented by symbol Na. This A stands for Avogadro's, this N stands for number. So this Avogadro's number may be defined as number of atoms present in 1 gram of an atom of the element. क्लियर? जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट इज़ इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ द एटम, मीन्स 1 ग्राम एटम के अंदर उतने ही एटम प्रेजेंट होंगे जितना हमने वो एटम ले रखा है. सो दिस एवोगैड्रोज नंबर इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द मोलिक्यूल. या तो हम एटम्स के टर्म्स में लें या फिर हम इसको ले सकते हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 एटम ऑफ द गिवन मोलिक्यूल. Clear? This is called as Avogadro's number. So the amount of substance containing this Avogadro's number of the atoms or molecules is called as mole. तो जिस substance के अंदर ये Avogadro's number present होगा, ठीक है, किसी भी substance के अंदर जो अमाउंट प्रेजेंट होगी जिसमें Avogadro's नंबर प्रेजेंट होगा, चाहे वो एटम्स हो चाहे वो मोलिक्यूल्स हो, उस टर्म को क्या नाम दिया गया? दैट इज़ कॉल्ड एज मोल. सो दिस मोल इज़ अ केमिस्ट यूनिट. What is this mole? This mole is the chemist unit for counting the particles, used for counting the particles. अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हम कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसा सामान होता है जिसको हम काउंट करके लेते हैं. सपोज़ हम कोई चीज़ डज़न में परचेज़ कर रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पर हमारे पास कितने पार्टिकल्स आएंगे? 12 पार्टिकल्स काउंट होंगे. ठीक है. अगर हम किसी
केमिस्ट्री की टर्म में अगर हमारे पास कोई एटम है या मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसको हमें काउंट करना है। उसको काउंट करने के लिए हम यहाँ पर कौन सी टर्म को यूज़ करेंगे, मोल टर्म को यूज़ करेंगे। क्लियर। एंड दिस मोल इज़ द केमिस्ट यूनिट ऑफ काउंटिंग द पार्टिकल। दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स, आयंस और molecules, and these particles may be electrons और these particles may be protons। कोई भी पार्टिकल हो, एटम का पार्टिकल हो, कोई एलिमेंट हो, कोई मोलिक्यूल हो, कोई आयंस प्रेजेंट हो। क्लियर है। तो इन सब की वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, इन सब को हम क्या बोलते हैं, सिंपली पार्टिकल्स। तो इनके नंबर को काउंट करना है, कितने एटम्स हैं, कितने आयंस हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हमने इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए, कितने प्रोटॉन्स काउंट किए। तो ये काउंटिंग पॉसिबल हुई किसकी हेल्प से, एवोगैड्रोस नंबर की हेल्प से। इट मीन्स जो भी हमारे पास पार्टिकल प्रेजेंट होगा उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। चाहे वो एटम हो, उस एटम के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, आयन के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे, मॉलिक्यूल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब आ जाएंगे। सो since the term this mole is applicable to all sorts of particle, while using this term it is also important to indicate the nature of particles। कोई भी पार्टिकल हो उन सब के लिए हम इसी मोल टर्म को यूज़ करेंगे जब भी हमें कुछ काउंट करना होगा। ठीक है। लेकिन साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो भी हम पार्टिकल ले रहे हैं उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर। सपोज हम लिख रहे हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। अब ये टर्म जो लिखी है दिस टर्म इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमने हाइड्रोजन तो लिख दिया है। ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, एटम की फॉर्म में है, आयन की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, वो हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। सो इट इज़ कंसीडर्ड एज रॉन्ग। देयरफॉर वी मस्ट स्पेसिफाई वेदर वी आर रेफरेंसिंग टू हाइड्रोजन एटम और द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हमें लिखना पड़ेगा वहाँ पर हम हाइड्रोजन को किस फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमने एटम की फॉर्म में लिया है या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को हमने मॉलिक्यूल की टर्म में लिया है। देयरफॉर फ्रॉम दिस another definition arises। Therefore 1 mole of hydrogen atom means 1 mole of hydrogen atom means 6.022 10 raised to power 23 atoms of hydrogen। It is equal to atoms of hydrogen। Clear। More simply I am writing it here as, suppose we have 1 mole of H atom, then it is equal to a number। क्लियर। अब ये किसके इक्वल होगा, एक नंबर के इक्वल होगा, और वो नंबर हमारे पास किसका होगा, एटम्स का, क्योंकि अब की बार जो पार्टिकल्स है वो एटम्स की फॉर्म में है। देयरफॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दैट नंबर ऑफ एटम्स। हमने यहाँ पर लिखा था 1 ग्राम ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ एटम्स। अब की बार हमने यहाँ पर 1 मोल ले रखा है क्योंकि इस टर्म को अब हमने केमिस्ट की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट की फॉर्म में यूज़ करें, तो अब यहाँ पर ग्राम लेंगे, मेरे मोल टर्म को यूज़ करेंगे। सो इट इज़ इक्वल टू सेम नंबर ऑफ एटम्स। वो नंबर क्या था हमारा, दैट इज़ एवोगैड्रोस नंबर 6.022 10 raised to power 23। अब ये सिर्फ नंबर है, अगर हमने सिंपल ऐसे लिखा है तो ये रॉन्ग होगा। इसके साथ हमें मेंशन करना है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो किस फॉर्म में है, उसको हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 6.022 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हमारा बिल्कुल सिग्निफिकेंट भी है, स्पेसिफाई कर दो, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम लिखते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इट इज़ H2। अब इसमें भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। स्पेसिफाई करना है कि यहाँ पर एटम को रिप्लेस करके हम किसको लेके आएंगे, 6.022 10 raised to power 23 एज इट इज़, मॉलिक्यूल्स आ जाएगा एटम को रिप्लेस करके ऑफ द हाइड्रोजन। क्लियर। सो अ मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर आता है उसका मतलब क्या होगा, 6.022 10 raised to power 23 molecules of oxygen, atoms of oxygen and so on। So from this few more definition arises to us। First is definition of this mole in terms of mass। Therefore in terms of mass a mole is defined as amount of substance which has mass equal to gram atomic mass। अब की बार हमने किस फॉर्म में लिया है, मास की फॉर्म में, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी हम किस फॉर्म में लिखेंगे, मास की फॉर्म में। वहाँ पर हमने एटम्स की फॉर्म में लिखा था। एंड दिस इज इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दिस सब्सटेंस। वो अब किसके इक्वल आ जाएगा, उस गिवन सब्सटेंस के एटॉमिक मास के इक्वल, या फिर अगर मॉलिक्यूल ले रखा है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। सपोज हमारे पास है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम,
अब कार्बन एटम है, कार्बन का मास कितना होता है 12, तो ये इसका ग्राम एटॉमिक मास है। 1 मोल ऑफ द रेस्पेक्टिव सब्सटेंस, चाहे वो एटम ले रखा हो चाहे वो हमने मोलिक्यूल ले रखा हो, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास और इक्वल टू इट्स मोलिकुलर मास। क्लियर। सेकेंड डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, अ मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स द Avogadro's number of atoms or Avogadro's number of molecules if the substance is atomic or Avogadro's number of molecule if the substance is molecular। अगर हमारे पास गिवन सब्सटेंस है नंबर की फॉर्म में, क्योंकि द डेफिनेशन अब की बार इन टर्म्स ऑफ नंबर, सपोज 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, अब यहाँ पर नंबर क्या आएगा, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ द कार्बन एटम। अगर मोलिक्यूल लेते हैं तो एवोगैड्रोज नंबर ऑफ द मोलिक्यूल, इन दोनों टर्म्स को कोरिलेट कर दिया, फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, देयरफॉर 1 मोल ऑफ एनी एटम, सपोज वी हैव टेकन कार्बन एटम, इज इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 12 ग्राम एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर दैट इज 6.02 टू 10⁻23। जब भी हमारी मोल कंसेप्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं तो 1 मोल ऑफ एटम को हम उसके एटॉमिक मास के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं ग्राम की फॉर्म में, या फिर उसको हम एवोगैड्रोज नंबर के साथ भी लेके चल सकते हैं। थर्ड डेफिनेशन है मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट। इन केस ऑफ गैसेज, वॉल्यूम हम किसका लेंगे, गैसेज का। सो इन केस ऑफ गैसेज अ मोल इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ गैस विच हैज़ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स एट STP। कोई भी गैस लेंगे उसका जो वॉल्यूम होगा at standard temperature pressure, this STP stands for standard temperature pressure, that will consist of 22.4 liter of the volume। suppose 1 mole of oxygen gas कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, दिस वैल्यू 22.4 लीटर एट STP। 1 मोल ऑफ एनी गैस, चाहे ऑक्सीजन लो, CO2 लो, अमोनिया लो, कोई भी गैस लें, दैट विल कंसिस्ट ऑफ 22.4 लीटर ऑफ द रेस्पेक्टिव गैस एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एवोगैड्रोज नंबर एंड मोल कंसेप्ट। ये हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। द फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ एवोगैड्रोज कंसेप्ट इज़ इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट और सिंगल मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस का सिंगल मोलिक्यूल है या उसका सिंगल एटम है तो इसकी हेल्प से उसके हम एक्चुअल मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स आयंस फॉर मोलिक्यूल्स इन द गिवन एलिमेंट और कंपाउंड, उसके एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। फर्स्ट है वी कैन फाइंड आउट द एक्चुअल मास, सेकंड वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स, थर्ड वी कैन आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर हमारे पास जो गिवन स्पेस वो गैसेस फॉर्म में है तो गैसेस के अंदर जो वॉल्यूम हमने यूज़ कर रखा है उस पर्टिकुलर गैस के अंदर कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसको भी हम निकाल सकते हैं अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट इज़ इन कैलकुलेशन ऑफ द साइज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और मोलिक्यूल्स एज्यूमिंग टू बी स्फेरिकल। हम यहाँ पर किसी भी एटम का किसी मोलिक्यूल के साइज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये साइज़ कब फाइंड आउट कर पाएंगे, जब हम कंसीडर करें कि जो हमारा एटम है या मोलिक्यूल है उसकी शेप स्फेरिकल है, तब उसके साइज़ को हम रेडियस के फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द लास्ट एप्लीकेशन और लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एवोगैड्रोज कंसेप्ट इज इट विल हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ एक्चुअल मास ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1 U। This 1 U stands for unified mass. So what is AMU? 1 AMU is equal to 1/12 of mass of carbon 12. Therefore, this 1 AMU or 1 U is equal to 1/12 of mass of carbon 12 divided by Avogadro's number. It comes out to be 1.6606 10⁻24 or 27 kilogram. Therefore, we can calculate the actual mass of 1 atomic mass unit or 1 U. These are the importance of Avogadro's number and the mole concept. Now your homework is revise classwork and do problem based on Avogadro's number and mole concept. Solved question करना है इसमें आपको of type 1, type 2 up to type 2। आज आप करेंगे solved question type 1 and type 2।